Good morning, students. Your ma'am is here with a video today. Dear students, we are going with the chapter Organic Manures and Biofertilizers in our regular classes. And we have completed fertilizers, manures, farmyard manure, etc. Now the next topic is vermicompost. So today we'll go with vermicompost. So vermicompost is a type of manure. It is a manure which improves physical, chemical and biological properties of soil. It is the manure which is prepared with the help of earthworms. किसके हेल्प से बनता है ये? earthworms की हेल्प से बनता है. और ये जो पर्टिकुलर मैन्योर है ये सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करता है. आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किस तरह से जो मैन्योर्स होते हैं दे आर बेटर देन फर्टिलाइजर्स, और किस तरह से वो जो किसी भी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं. फिर अपन ने पढ़ा हाउ दे इफेक्ट देयर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. फिर अपन ने पढ़ा हाउ दे इफेक्ट देयर chemical properties. So vermicompost is a type of manure which improves all the natures, we can say all physical properties of soil. It improves chemical properties of soil, it improves biological properties of soil. So it is a very effective manure. So today we'll go through this. So the process of preparing vermicompost with the help of earthworms by cow dung, animal dung or our house waste, that whole process comes under the category of vermi technology. किसके अंदर आएगा वो? वर्मी टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा कि किस तरह से अपन जो है काउ डंग से, एनिमल वेस्ट से या फिर जो भी अपना लिटर है, वेस्ट है घर का, उससे अपन किस तरह से मैन्योर का वर्मी कंपोस्ट का फॉर्मेशन करते हैं. तो होल ऑफ द टेक्निक इज नोन एज वर्मी टेक्नोलॉजी. So under vermicompost, following topics are considered. First is vermiculture. Vermiculture. So what is vermiculture? Vermiculture means rearing of earthworms. Rearing of earthworms. आपको पता है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अपने को नेसेसरी है? अर्थवॉर्म्स. सो अपन जो अर्थवॉर्म्स की रियरिंग करते हैं इस टेक्निक के अंदर earthworms are required. So the rearing of earthworms for production of vermicompost is known as vermiculture. That is a culture of earthworms. So rearing of earthworms, that is providing them a suitable condition, providing them necessary condition, temperature, moisture, that all come under vermiculture. Next is vermicompost. Now what is vermicomposting? So it is a technique by which earthworms are placed over dung and other things, biodegradable material, so that it can be converted by the earthworms into the manure, vermicompost. So this technique, that how earthworms converts the manure portion, we can say dung portion and waste portion into manure, is known as vermicomposting. The process of forming compost, vermicompost, is known as vermicomposting with the help of earthworms. Now what is vermiconservation? अब जो है वर्मी कंपोस्ट का फॉर्मेशन हो गया है. वर्मी कंपोस्ट का फॉर्मेशन होने के बाद में क्या नेसेसरी है कि अपन अर्थवॉर्म्स को वहां से हटा लें. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अर्थवॉर्म्स फ्रॉम वर्मी कंपोस्ट इज नोन एज वर्मी कंजर्वेशन. कंजर्वेशन यू नो, प्रोटेक्ट करना किसी भी चीज को. तो अर्थवॉर्म्स को वहां से रिमूव करना जहां पे कि वर्मी कंपोस्ट बन गया है, दैट प्रोसेस इज नोन एज वर्मी कंजर्वेशन. नेक्स्ट इज वर्मिकास्ट. व्हाट इज वर्मिकास्ट? आपको पता है जब अपन ने अर्थवॉर्म्स को काउ डंग, एनिमल डंग के ऊपर डाला तो दे फीड ऑन दैट डंग. वो उस डंग को खाते हैं, उसमें फीड करते हैं. देन दैट मटेरियल गोज थ्रू द बायोलॉजिकल प्रोसेस. उनकी एलिमेंट्री कैनाल से होकर गुजरता है, सारा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, और उसके बाद में जो उनका वेस्ट निकलता है, दैट वेस्ट इज नोन एज वर्मिकास्ट. उस वेस्ट को अपन क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज वर्मिकास्ट. And this vermicast is very nutritive substance. It contains various elements which are very essential for the plants for their growth. जो plants को अपनी growth के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इसमें वो सारे materials होते हैं. For example, नाइट्रोजन जो होता है वहां पे, that is 1.75 to 2.5%. पोटेशियम जो है that is 1.0 to 1.5%. फॉस्फोरस जो है दैट इज 1.5 to 1.8%.
And as we all know, NPK are essential nutrients for plants. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जो है वो प्लांट्स की बहुत ही असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है. इनके बिना प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं है. सो बिकॉज ऑफ दिस वर्मी कास्ट, दिस वर्मी कंपोस्ट प्रूव्स टू बी वेरी गुड मैन्योर. बहुत अच्छा मैन्योर ये प्रूव होता है बिकॉज इट कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स. सेकेंडली, दिस वर्मीकास्ट ऑल्सो कंटेन्स एक्टिनोमाइसिटीज. ये एक्टिनोमाइसिटीज भी कंटेन करता है और इस एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं. और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से जहां पे अपन ने जिस सॉइल में अपन ने वर्मी कंपोस्ट यूज किया है उस सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो इंसेक्ट्स जो है वो लग नहीं पाते. वीड्स का ग्रोथ जो है वो क्या होता है वहां पे कम होता है. तो जो इंसेक्ट्स या वीड्स से अपने को लॉस होने वाला होता है क्रॉप्स में, वो लॉस भी अपन वर्मी कास्ट की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं. तो वर्मी कंपोस्ट इज द मैन्योर विच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म्स. Earthworms feed on animal dung and their waste produced acts as a manure which is known as vermi compost. And the process of making vermi compost is known as vermi technology. और वर्मी टेक्नोलॉजी के अंदर अपन ये सारे स्टेप्स पढ़े. वर्मी कल्चर क्या होता है, यू मस्ट नो. वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, यू मस्ट नो. वर्मी कंजर्वेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए. और वर्मी कास्ट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए. गॉट इट? ये आपकी टेक्नोलॉजी के थोड़े से इनिशियल स्टेप्स थे. अब अपन बात करेंगे अर्थवॉर्म्स की, कि अर्थवॉर्म्स की रियरिंग कर रहे हैं अपन, तो अर्थवॉर्म्स के बारे में भी अपने को नॉलेज होना चाहिए. सो विल टॉक अबाउट अर्थवॉर्म्स. अर्थवॉर्म्स जनरली अपन मानते हैं कि अबाउट 2500 to 3000 स्पीशीज जो है अर्थवॉर्म की दे आर नोन, वो मानी जाती है, दे वर फाउंड. लेकिन अपने इंडिया में जनरली 350 टाइप्स ऑफ स्पीशीज आर फाउंड. इंडिया में इतनी ही स्पीशीज जो है वो नोन है या पाई गई है. बाकी इतना जो है ये सब पॉसिबिलिटी इसकी अर्थवॉर्म्स की है. और इस 350 में से 293 जो स्पीशीज हैं दे आर यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर. 293 स्पीसीज जो हैं ये एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल है. गॉट इट? कि टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है अर्थवॉर्म की स्पीशीज की? 2500 to 3000. नॉट फिक्स नंबर इज देयर. इंडिया में अबाउट 350 जो है दे आर फाउंड. और एग्रीकल्चर के लिए कितना जो है यूजफुल है, दैट इज 293. अब अपन देखेंगे कि जो मेन टाइप्स हैं अर्थवॉर्म्स के. अर्थवॉर्म्स आर ऑफ 3 टाइप्स. वन इज एपिजिक्स. Second is endogics. And third one is diogics. There are 3 types of earthworms. First is epigics, second is endogics, and third one is diogics. ये अपने को एपिजिक्स टाइप जो है ये अपने को जनरली 1 मीटर डेप्थ तक मिलते हैं. सॉइल में कितना डेप्थ तक मिलते हैं? 1 मीटर डेप्थ तक मिलते हैं. ठीक है. दे फीड ऑन एग्रीकल्चरल वेस्ट, काउ डंग, इन सब पे फीड करते हैं ये. और ये वाला टाइप जो है दैट इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. जनरली जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए अपन जो यूज करते हैं वो कौन सा टाइप है? वो एपिजिक्स टाइप है. और इस एपिजिक्स टाइप में ही एक जो जनरली अपन बात करते हैं जो एक अर्थवॉर्म है दैट इज टाइप ऑफ अर्थवॉर्म स्पीशीज जो है दैट इज आइसिनिया फोइटिडा. आइसिनिया फोइटिडा ये स्पीशीज जो है दैट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर practices in Rajasthan generally for preparing vermi compost. तो एपिजिक्स जो है वो 1 मीटर डेप्थ तक रहते हैं. एंडोजिक्स जो है वो 3 मीटर डेप्थ के नीचे रहते हैं आफ्टर 3 मीटर. और डायोजिक्स जो है दे आर प्रेजेंट बिटवीन 1 मीटर टू 3 मीटर डेप्थ. तो ये जो 3 मीटर डेप्थ के नीचे रहते हैं तो ये वैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में वैसे अपन डायरेक्टली इनका रोल नहीं है, बट दे हेल्प इन एग्रीकल्चर. हाउ दे हेल्प इन एग्रीकल्चर? कि जब बहुत नीचे होते हैं तो दे फीड ऑन सैंड पे फीड करते हैं. सैंड पे फीड करते हैं तो जनरली ये सैंड पे जब फीड करते हैं तो जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन, सॉइल जो है वो पोरस हो जाती है, एयर सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, वाटर सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो अच्छा होता है. सो इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर. बट जनरली वर्मी कंपोस्टिंग में अपन किसको यूज करते हैं? एपिजिक्स. क्योंकि ये जो है एग्रीकल्चरल वेस्ट पे,
काउ डंग, एनिमल डंग पे फीड करता है और इसके वेस्ट जो है दैट इज अ गुड मैन्योर विद कोकून्स, सो दैट इज नोन एज वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ अर्थवॉर्म इज आल्सो गुड फॉर एग्रीकल्चर, बट इनडायरेक्टली। कैसे कि ये सॉइल में बहुत नीचे रहते हैं, 3 मीटर डेप्थ के नीचे रहते हैं, जिसकी वजह से दे फीड ऑन सॉइल, सॉइल के ऊपर फीड करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल कैसा होता जा रहा है, इट बिकम्स पोरस, पोरस होने की वजह से और एयर सर्कुलेशन बढ़ गया, वाटर सर्कुलेशन बढ़ गया, प्लांट विल गेट एयर और वाटर प्रॉपरली। जब प्लांट को अच्छे से एयर और वाटर मिलेगा तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, इट विल बी बेटर। सो जनरली 3 टाइप्स ऑफ अर्थवॉर्म्स आर देयर, एपिजिक्स, एंडोजिक्स, डायोजिक्स। अब जनरली अपन बात करते हैं कि जो अर्थवॉर्म है इसका वेट क्या होता है, सबने देखा है आपने वेट, तो नियर अबाउट 1 ग्राम। कितना वेट होता है, नियर अबाउट 1 ग्राम, और इसका जो लेंथ होता है इट इज 3 to 4 इंचेस। दिस इज जनरल कि जनरली 3 to 4 इंचेस होता है ये लेंथ में, और इसका वेट जो होता है दैट इज नियरली 1 ग्राम जो है इसका वेट होता है। और अपन मानते हैं कि जनरली जो एक अर्थवॉर्म होता है इट लेस 2 to 3 cocoons, 2 to 3 cocoons in a week, और हर कुकून जो है ईच कुकून कैरी 3 to 4 eggs। तो अपन अगर पूरा एज अ सम टोटल अपन देखें तो 6 मंथ्स में एक अर्थवॉर्म्स जो है वो 250 जो है अर्थवॉर्म्स को प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है। Why? बिकॉज एक अर्थवॉर्म एक वीक में कितने कुकून देता है, 2 to 3, और हर कुकून में कितने एग्स होते हैं, रफली 3 to 4। तो जिसकी वजह से 6 मंथ्स में रिप्रोडक्शन की क्या टेंडेंसी हुई कि 6 मंथ्स में एक अर्थवॉर्म जो है इट कैन प्रोड्यूस 250 अर्थवॉर्म्स। ठीक है, सो दिस इज वी कैन से इंट्रोडक्शन और वी कैन से द टाइप्स ऑफ अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स के टाइप्स हो गए, विल रिवाइज इट। अर्थवॉर्म्स आर ऑफ 3 टाइप्स, एपिजिक्स, एंडोजिक्स, डायोजिक्स। एपिजिक्स जो है वो 1 मीटर डेप्थ तक रहते हैं सॉइल में, एग्रीकल्चरल वेस्ट पे फीड करते हैं और इसको ही जनरली वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए अपन काम में लेते हैं। एंडोजिक्स जो है वो 3 मीटर डेप्थ के नीचे होते हैं और ये इन दोनों के बीच में होते हैं, 1 मीटर और 3 मीटर के बीच में होते हैं ये। तो 3 मीटर डेप्थ होने की वजह से डायरेक्टली इनका रोल नहीं होता, लेकिन ये एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प करते हैं। किसके, किस तरह से सॉइल को पोरस बनाते हैं। सॉइल को पोरस बनाने से सॉइल में एयर सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, वाटर सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। एयर और वाटर सर्कुलेशन इंक्रीज होने से क्रॉप का प्रोडक्शन जो होगा दैट विल बी गुड। तो इस तरह से ये अपने को हेल्प करते हैं। और टोटली अपन ने देखा एपिजिक्स जो है वो है, तो एपिजिक्स का मैंने आपको स्पीसीज बताया था, आइसिना फोइटिडा, वो जो स्पीशीज है दैट इज जनरली यूज्ड फॉर making vermi compost. Now we'll talk about method of preparing vermi compost. Method, how we prepare it. मैथड में अपन देखते हैं कि किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, इसको कैसे करते हैं। अपन ने अर्थवॉर्म्स के टाइप पढ़ लिए, पूरा टेक्निक के स्टेप्स पढ़ लिए। अब अपन देखेंगे 1 by 1 अपन इसको कैसे प्रोड्यूस कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं, किस तरह के टेम्परेचर अपन ध्यान रखेंगे, किस तरह का मॉइस्चर कंडीशंस अपने को ध्यान रखना है, वो अपने को ध्यान देखना है। तो सबसे पहले जब अपन वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो अपने को एक हाइट वाला एरिया जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आप जहां पे भी इसको बना रहे हो, रियरिंग कर रहे हो, वर्मी कल्चर आप जहां पे भी कर रहे हैं, तो वहां पे एक हाइट वाला एरिया आप सिलेक्ट करिए और शेडेड होना चाहिए वो एरिया। क्यों होना चाहिए शेडेड? क्योंकि अर्थवॉर्म्स को लाइट की जरूरत नहीं होती, दे ग्रो फास्टली इन डार्क, डार्क में ज्यादा अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है, इसलिए अपन एक शेडी और हाइट वाला एरिया जो है वो सिलेक्ट करते हैं। शेड होना चाहिए क्योंकि दे डू नॉट रिक्वायर लाइट। अब इसके लिए अपन एक बनाते हैं, एक चैम्बर बनाते हैं। तो चैम्बर अपन जो बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि उसका ब्रेथ तो कम होना चाहिए और लेंथ जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ब्रेथ तो इसका 3-4 फीट और लेंथ जो है अपन उसको वेरी हो सकता है, ये अपन अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जो है वी कैन वेरी इट, लेकिन जनरली अपन मानते हैं कि इस तरह से मान लीजिए अपन ने कोई इसका चैम्बर बना लिया। ठीक है, तो लेंथ आप ले लीजिए 3 to 4 फीट और ब्रेथ अपन ने ले लिया 10 to 15 फीट, और जब भी ज्यादा अपन इसको इंक्रीज कर सकते हैं और वी कैन इंक्रीज अकॉर्डिंगली। अब इसमें कुछ फिक्स्ड जो है पैरामीटर नहीं है कि आपको यही रखना है, बट लेंथ जो है इट इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ ब्रेथ, बहुत ज्यादा होना चाहिए लेंथ से, ब्रेथ से लेंथ जो है वो। अब सबसे पहले अपन क्या डालते हैं इसमें, यहाँ पे स्ट्रॉ नीचे सबसे पहले जो भरते हैं, तो फर्स्ट लेयरिंग जो अपन इसको करते हैं वो स्ट्रॉ, एग्रीकल्चरल वेस्ट, वो सब डालते हैं इसमें बेस में। सबसे नीचे डाला, उसको मॉइस्चन किया,
क्यों किया अपन ने मॉइसन? क्योंकि जो अर्थवॉर्म्स है उनको ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, ठीक है, दे रिक्वायर मॉइस्चर, और टेम्परेचर जो चाहिए वो 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड एंड 30% मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड। इनके लिए मॉइस्चर का जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 30% मॉइस्चर एंड टेम्परेचर इज 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। ये दोनों कंडीशंस एसेंशियल है। अब फर्स्ट लेयर अपन ने स्ट्रॉ का लगाया, फिर एग्रीकल्चरल स्ट्रॉ और एग्रीकल्चरल वेस्ट लगाया और उसको अपन ने मॉइसन कर दिया, उसके ऊपर पानी वानी अपन ने डाल दिया। फिर अपन ने क्या किया, एनिमल डंग, ठीक है, कुछ लीटर्स अपन ने एनिमल डंग, काउ डंग या जो भी अपना वेस्ट है उसको डाल दिया। उसके डालने के बाद में अपन इसमें वर्मी कास्टिंग डालते हैं, वर्मी कास्टिंग करते हैं, और वर्मी कास्टिंग में क्या होना चाहिए, कुकुन्स होने चाहिए। तो फर्स्ट लेयर तो स्ट्रॉ एग्रीकल्चरल वेस्ट की हो गई। नेक्स्ट लेयर जो है अपन किसकी लगाते हैं, डंग की, एनिमल डंग यहाँ पे अपन यूज कर लेते हैं। इट मे बी काउ डंग, इट मे बी बफेलो डंग, और एनिमल डंग के बाद में वी यूज वर्मी कास्टिंग विथ कुकुन्स। ठीक है, वर्मी कास्टिंग विथ कुकुन्स वी यूज। नाउ जब अपन ने वर्मी कास्टिंग विथ कुकुन्स डाल दिया, उसके ऊपर वापस से वी यूज एनिमल डंग, वापस से उसके ऊपर क्या यूज करेंगे, एनिमल डंग, वापस से उसके ऊपर एनिमल डंग अपन ने डाल दिया, फिर उसमें थोड़ा सा वाटर अपन ने स्प्रिंकल कर दिया, ये सब अपन कर देंगे उसको और फिर छोड़ देंगे। अंडर फेवरेबल कंडीशंस, अब फेवरेबल कंडीशंस क्या है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस क्या थी, अभी अपन ने बात की थी 30% तो होना चाहिए मॉइस्चर और 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए, टेम्परेचर। इन कंडीशंस में, फेवरेबल कंडीशंस में 60 डेज के अंदर आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इस तरह से पूरा वर्मी कंपोस्ट को प्रिपेयर कर लेंगे। द एसेंशियल कंडीशन इज शेडी एरिया होना चाहिए और हाइट पे होना चाहिए एरिया, मॉइस्चर कंडीशंस आपको ध्यान में रखना है, और टेम्परेचर आपको देखना है कि टेम्परेचर मेंटेनेंस शुड बी देयर। तो 60 डेज के अंदर अंदर जो है वर्मी कंपोस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ वर्मी कंपोस्ट। जब अपन वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं तो बेनिफिट्स की बात करेंगे कि इसके अपने को क्या क्या फायदे हैं। बेनिफिट्स में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग इज, अपन ने देखा इट इज अ वेरी गुड टाइप ऑफ मैन्योर। अगर अपन इसका कंपैरिजन दूसरे टाइप्स के मैन्योर से करते हैं तो इट इज फार बेटर। क्यों बेटर है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नाइट्रोजन का परसेंट, फास्फोरस का परसेंटेज, पोटेशियम का परसेंटेज, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो है दे आर वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो बहुत ही एसेंशियल ये न्यूट्रिएंट है। तो कंपैरेटिवली जो और मैन्योर्स हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस होती है उससे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस जो है वर्मी कंपोस्ट में होती है। सो फर्स्ट यूज इज दिस। Next is it improves the texture of soil. It improves the texture of soil. It increases the we can say it increase humus in soil. ये soil में humus increase करता है. It helps. Second thing is it increases humus in soil. Third thing is it helps in water circulation. Water circulation में help करता है. Air circulation में help करता है. Next thing is मैंने आपको बताया था कि इसमें जो वर्मी कास्ट होता है it contains एक्टिनोमाइसिटीज। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिनोमाइसिटीज, और जो एक्टिनोमाइसिटीज है उसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं तो ये प्लांट्स को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता है, और जो सॉइल है जिसमें अपन ने वर्मी कंपोस्ट का यूज किया है वहां पे ज्यादा वीड्स का ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाता। तो इन दैट वे इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। नेक्स्ट इज जो वर्मी कंपोस्ट होता है इट ऑल्सो कंटेन्स सम ग्रोथ हॉर्मोन्स, साइटोकाइनिन, जिबरलिन्स, ये जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं these are also present in vermi compost. Because of this the plant grow fastly by using this. तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो इसको यूज करने से क्या होती है, बहुत ही फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज अपन बात करेंगे कि जो वी कैन से क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और these are the main things. ठीक है, so again we'll revise benefits. First is it is very good kind of manure, so it contains comparatively more amount of nutrients in comparison to other. Next is it increases aeration, it increases water circulation. Next is it contains actinomycetes
which improves the antibiotic properties of the soil. Next is it we can say it reduces the attack of termites और weeds का growth जो है उसको reduce कर देता है. फिर it contains growth hormones. तो growth hormones it produces it also contains growth hormones जिसकी वजह से जो plant का growth जो है वो क्या होता है, बहुत ही fast होता है. ठीक है, तो these are the benefits. It is a very good kind of manure. नेक्स्ट अपन देखते हैं, और आजकल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है उसको अपन वर्मी कंपोस्ट यूज करके बहुत अच्छे से उसके साथ में डील कर सकते हैं. कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. आपको पता है आजकल अपन फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, तो फर्टिलाइजर्स से जो फूड का टेस्ट है दैट ऑल्सो चेंजेस, वो भी चेंज हो जाता है, और वी कैन से जो उसकी क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है. सो इट इज नॉट, फर्टिलाइजर्स आर नॉट गुड. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें वर्मी कंपोस्ट आर वेरी गुड. नेक्स्ट इज अपन बात करते हैं इसकी मेथड ऑफ यूजिंग. तो अपन इसको किस तरह से यूज करते हैं. अपन जनरली इसको सोइंग के टाइम में यूज कर सकते हैं, सॉइल में जब आपको सो करना है तब, या फिर सॉइल का जब अपन प्रिपरेशन करते हैं, फार्मर सब जब सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम में जनरली वो वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करके उसको सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो सॉइल प्रिपरेशन के साथ में टाइम में यूज कर सकते हैं, प्लोइंग के टाइम में अपन इसको यूज कर सकते हैं. और जनरली जब अपन क्रॉप्स और वेजिटेबल्स की सेपरेटली बात करते हैं तो क्रॉप्स में इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो कम होती हैं, लाइक 5 to 6 टन्स पर हेक्टेयर. लेकिन अगर वेजिटेबल्स की अपन बात करते हैं तो वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं, 10 to 15 टन्स. ठीक है, तो अपन ने बात किया जैसे क्रॉप्स में बात करेंगे तो क्रॉप्स में तो इसका क्या हो जाएगा 5 to 6 टन पर हेक्टेयर. और अगर वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो इट इज 10 to 15 टन्स पर हेक्टेयर. तो वेजिटेबल्स में इसका जो है वो अमाउंट रिक्वायर्ड जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है. नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर अपन डिफरेंट क्रॉप्स की बात करें तो इट इज द रिक्वायर्ड इज, मतलब इतना कुछ वेरिएशन, सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है बट ज्यादा लिमिट नहीं है. जनरली 2 to 3 टन्स पर हेक्टेयर जो है जनरली अपन इसको यूज करते हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट्स यूजिंग. तो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक वर्मी कंपोस्ट. तो वर्मी कंपोस्ट में अपन ने क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले वर्मी टेक्नोलॉजी पढ़ा, फिर वर्मी टेक्नोलॉजी की अपन ने जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो पढ़ी. उसके बाद में अपन ने बात की टाइप्स ऑफ अर्थवॉर्म्स की. उसमें अपन ने अर्थवॉर्म्स की 3 टाइप्स पढ़ी, एपिजिक्स, एंडोजिक्स, डायोजिक्स. अपने को जो यूज करना है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए वो एपिजिक्स को करना है. फिर अपन ने बात की हाउ टू प्रिपेयर इट, मेथड इसका कैसे यूज करते हैं, और फिर अपन ने बात किया इसके बेनिफिट्स की. ठीक है, टू गो थ्रू द होल टॉपिक्स one by one, and if you face any problem talk to me. That's all for today. Thank you.